अच्छा आप लोगों ने बता दिए कि रिवीजन में पता चल गया. Okay. So again, thank you so much. So what we have just revised the thing what we have done in the morning. So revision तो आप लोग को already मतलब already हुआ एक morning में एक बार वापस से revision किए. So that's nothing difference. Okay. So our recording has started now. So this is the GPRS architecture model what we have seen. See why I'm explaining these term again and again because this is going to use in the next model. Okay. The part of this architecture model, architecture reference model is going to be used in the next diagram. Okay, we have two topics which we have to cover in this session. One is the UTRAN and the second topic is UMTS. Okay, so in UMTS you will see that the part that you can see this part SGSN, GGSN that is used over here. Okay, so मैं इसके लिए दोबारा बार बार रिवाइज कर रहा था. Okay, so ये हो गया अभी. Now we'll start with the UTRN. Okay, the full form of UTRN you can see over here that is UMTS Terrestrial Radio Access Network. Okay, फिर UMTS का भी फुल फॉर्म है. आगे चल के आप UMTS का भी फुल फॉर्म देखेंगे. That is Universal Mobile Telecommunication Service. Okay, let me tell you about this UMTS first. That the UMTS was the service, or it was the broadband service, or we can say, a telecommunication service, which was provided with the help of the third telecommunication generation. सो आपका जो थर्ड जनरेशन से जो आपकी सर्विसेज स्टार्ट हुई है वो यूएमटीएस के साथ में स्टार्ट हुई है. यूएमटीएस भी उसमें इंक्लूड था. ठीक है, तो चलो वापस आते हैं. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम. ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के बाद में डायग्राम है. सो आई थिंक सबसे पहले हमको डायग्राम दिखना चाहिए एंड देन विल गो टू द एक्सप्लेनेशन. ओके, द डायग्राम इज डैम सिंपल. ओके, जस्ट नीड टू compare the diagram with the help of GSM architecture diagram what we have seen in the earlier sessions. Okay, so now let us start this topic that is UTRAN, that is Utran. I'll say Utran. Okay, so this is the basic architecture of Utran. Okay, and in this you will find one big module that is RNS. Okay, Radio Network Subsystem. Okay, as you are having the BSS. Okay, आपके पास में उसमें था BSS. Okay, यहाँ पर हमारे पास में है RNS. Okay, in that you will find, okay, you are having multiple cell. Okay, these all the circle. Now just type all the students, this is my humble request to all of you that please focus on this diagram. Okay, if the question is asked like Utran, explain Utran or ऐसे उसके related अगर कुछ आता है, then this diagram will help you out to write the answer of this question. Okay, it's very simple. Just need to focus and compare this diagram with the help of GSM diagram. Okay, चलिए वापस आते हैं. So imagine we are having this cell. Okay, so this is one cell, two cell, three cell. Okay, so we are having all those cell in the GSM also. Okay, यहाँ पर हमारे पास में cell है, cell number 1, cell number 2, cell number 3. All these three cells are being controlled using the node B. Okay, so we have a new entity. इसका नामकरण सही से हो नहीं पाया है, इन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया था बुक के अंदर इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ था. So we were unable to give the proper name of that particular entity or that particular component. So we have given it as a node B. Why node B? Because after all these cells, so this is the second component. So this becomes the second component, that is node B. Okay. So these three area in which you can find that there are antennas situated which are broadcasting the signal in the particular cell. Okay. सो ये जो सेल है, सेल के अंदर एंटीना है, एंटीना क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है. सो वी आर हैविंग लाइक वन सेल, टू सेल एंड थ्री सेल. सो दिस थ्री सेल आर बीइंग कवर्ड बाय दिस नोड बी. ओके, राइट, ऐसे ही हमारा उसमें भी था, जीएसएम में भी था. ओके, उसके बाद में दिस टू सेल वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू, दिस टू सेल्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नोड बी, अगेन सेकंड नोड बी. तो वी आर हैविंग लाइक हमारे पास में वहाँ क्या था, हमारे पास में बीटीएस बीएससी काम करते थे, वैसे यहाँ पर आपका नोड बी काम कर रहा है. ठीक है, so node B है this, then again these two node B's are connected with the RNC. Okay, your RNC is nothing but the radio network controller. We'll come to that. We in this diagram there are three main components. Okay, the one is RNC, second is node B, and the third is core network. No, the third is UE. Okay, that is user equipment. Okay, user equipment. Okay,
So these three cells are connected to this node B. Okay, you can follow my cursor. These two cells are being covered by or being controlled by this second node B, and these two node B are controlled by the RNC. Okay, now again, if we'll go to the, if we'll follow the hierarchy, if we will follow the hierarchy, then again we have this node B again, third node B, which is controlling this one cell and this second cell. This node B is controlling this cell and this cell, and the last node B is controlling only one cell. Okay, and all these three node B are being controlled by the second RNC. Okay, the first two node B were controlled by the first RNC, and the third, fourth, and fifth node B are connected to the RNC, that is second RNC. I will say second RNC. And again, these two RNCs are being controlled by the CN. Now what is CN? CN is the core network. Okay, देखो आपके पास में क्या था उस टाइम पे, इसकी जगह पे क्या था, अच्छा आरएनसी की जगह पे जीएसएम में क्या था, दैट वाज बीएससी. ओके, इट वाज बीएससी ओवर हियर. सो आई राइट आपको जस्ट थोड़ा सा समझने के लिए. तो ये हमारा बीटीएस समझ लो. सो ये हमारा बीटीएस है. इट इज वर्किंग लाइक बीटीएस. ओके, एंड इट इज वर्किंग लाइक बीएससी. ये हो गया हमारा बीएससी. ठीक है, जस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे. ठीक है, एंड दिस इज योर एमएससी. ओके, मोबाइल स्विचिंग सेंटर. Okay, so this is my MSC. Okay, and you know that in a GSM diagram we were having lot of BTS, and we were having lot of BSCs, and we were having one MSC. Okay, so MSC is connected to all the BSC. Okay, and then a particular BSC will cover the number of BTS. Okay, तो यहाँ पर उनके नाम चेंज हुए और कुछ नहीं हुआ, बाकी एवरीथिंग इज सेम. ओके, सो यहाँ पर आपका ये है, आपको यहाँ पर क्या बोलते थे, यू हैव अ मोबाइल स्टेशन हो गया. तो अगर आपका मोबाइल स्टेशन यहाँ पर है, ओके, तो आपका अगर मोबाइल स्टेशन यहाँ पर है, तो मोबाइल स्टेशन विल यूज दिस एंटीनास. ओके, will use this antenna to receive and transmit the signal. Okay, so this antenna will send the signal and will receive the signal. Okay, as far as this cell is concerned, as far as this cell is concerned. Okay, so this the lining is quite थोड़ा सा हटके जा रही है. So this is another cell. Okay, and this is third cell. Okay, तो यहाँ पर जो भी आपका यूजर है, तो they are going to use this antenna for sending and receiving the signal. Okay, and which are connected using the radio links. Radio links मतलब के wireless links के through connected है. Okay, to whom they are connected? They are connected to the node B. Okay, the cell antennas are directly connected with the node B via radio links. Okay, because you can see the symbol, आपका symbol जो है ना broadcasting का जा रहा है, it means they are connected wirelessly. Okay, then they are connected to the node B. Okay, the node B will act as and they are equivalent to the BTS. Okay, they are equivalent to the BTS. Okay, and now the number of node Bs are connected to the RNC. That RNC is the radio network controller. Okay, which is equivalent to the BSC. Okay, base station controller, उसके equivalent है. Okay, you can also say that the node B, multiple node B and RNC are connected via IUB interface. Okay, so वहाँ पर हमारे पास में एक तो कौन कौन से हमारे पास में इंटरफेसेस थे. एक तो मोबाइल यूजर इंटरफेस है आपका, मोबाइल यूजर इंटरफेस. then second is ABIS interface, and the third was A interface. So we were having the interfaces. Okay, तीन interfaces हमारे पास थी. Now in this diagram you will find again three interfaces. Okay, one interface, that is IUB interface. Okay, IUB interface which provide interconnection between the node B and RNC. Okay, first. Second आपका है IUR. Okay, there's a one new thing that two RNCs are also connected, or they will with the help of IUR interface. With the help of the IUR interface, it provides the connectivity between the two RNCs, that is a radio network controller. और उसके बाद में और अगर आके जाते हैं, so between multiple RNCs and the core network, that is CN, जो कि आपका MSC के इक्विवेलेंट है. ओके, तो MSC के इक्विवेलेंट आपका CN है. तो RNC और CN दोनों के बीच में इंटरकनेक्टिविटी और इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने के लिए वी हैव IU इंटरफेस. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर ये वाला इंटरफेस IUB, IUR and IU interface. Okay, so we have these three interfaces again in the Uttaran network. Okay, Uttara network या Uttaran. Okay,
सो थोड़ा सा डायग्राम अगर और फोकसली आप करेंगे, सो यू विल फाइंड देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दिस नेटवर्क दैट इज उतरन एंड द जीएसएम नेटवर्क। ओके, जीएसएम आपका सेकंड जनरेशन से आया है और उतरन आपका थर्ड जनरेशन से इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो बाद में फिर उसको ये भी मिला वो भी मिला, सब मिला के उसको फिर एक कोर नेटवर्क बनाए, आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ओके, so most of the companies and most of the organization used to have these networks, okay, used to have these core networks, and they can form their own network। okay, तो अपना खुद का उन लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। so ये डायग्राम है, अब ये डायग्राम को देख के we'll learn about the explanation, so we'll go to the explanation part। so each RNA is controlled by the radio network controller RNC। Okay. So RNA is basically what? RNA is nothing but the radio network subsystem. Network subsystem. Okay. Each RNS is controlled by the radio network controller and comprises several components that are called node B। Okay. तो आपका जो RNS है, your RNS is controlled by the radio network controller। तो यहाँ पर आपका जो ये कहाँ है RNC, तो RNC और नोड बी को मिला के, और बाकी यूजर इक्विपमेंट तो आपका हर रहेंगे ही, वो तो बाय डिफॉल्ट है। सो यूर RNS कंप्राइजेस ऑफ, या फिर वी कैन से RNS कंसिस्ट ऑफ दिस RNC एंड नोड बी। आपके सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो ओके, विच आर कनेक्टेड टू द विच आर कनेक्टेड बाय रेडियो लिंक्स। ओके, which are connected via radio links। Okay, and RNC in UMTS can be compared with the BSC। okay, RNC को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? BSC से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, why? as you will imagine, as you will आप थोड़ा सा अगर कभी ऑब्जर्व करेंगे, देन आपके पास में GSM में BSC कंपोनेंट था, द सेम द सेम प्लेस के ऊपर जो आपका यहाँ पर कंपोनेंट है दैट इज RNC, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। ओके, so your BSC is equivalent to the, sorry, your RNC is equivalent to the BSC। okay, a node B is similar to the BTS। okay, मैंने वो देखा नहीं था आगे एक्सप्लेनेशन, बट सेम है। your node B is equivalent to the BTS। ठीक है, your node B is equivalent to the BTS and your RNC is equivalent to the BSC। okay, so ये आपको अभी थोड़ा सा और क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे डायग्राम आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, each node B can control several antennas which makes a radio cell। okay, the simple statement में मैंने लिखा हूँ, जो सिंपल थे वही मैंने निकाला हूँ। so this node B is connected to multiple, or we can say number of antennas। okay, तो हमारा नोड भी ये वाले एंटीना को कनेक्टेड है, हमारा नोड भी ये वाले एंटीना को भी कनेक्टेड है, हमारा नोड भी ये वाले एंटीना को कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आर नोड भी, आर फर्स्ट वाला नोड भी इज कनेक्टेड और कंट्रोलिंग दीज थ्री सेल। ओके, तो जहां पर एंटीना लगा है उसके आसपास में एक रेडियस को कर लो और वो आपका बन गया एक सेल। दूसरी जगह पर आपने एक लगाया, फॉर एग्जांपल आपका ये एज है, मतलब एक थोड़ा सा एरिया था। ओके, अब ये एरिया को आपने यहाँ पर एक एंटीना लगाया। ठीक है, अब ये आपका जो एंटीना है, अगर ये आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है तो इट कैन कवर सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरिया। ओके, तो फॉर एग्जांपल थोड़ा ये एरिया इतना कवर कर लिया। ठीक है, यह बन गया आपका सेल नंबर 1। तो यह सिचुएटेड द सेकेंड एंटीना हुई है, तो आपका बन गया यहाँ पर सेकेंड वाला सेल। यहाँ पर आपने एक छोटा सा एंटीना लगाया तो आपका ये वाला एरिया कवर हो गया। सो लाइक वाइज दिस कैन बी एक्सप्लेन। ओके, तो ये आपका यहाँ पर your node B is connected with the your node B is connected your node B can control several antennas which makes a radio cell। okay, so which makes a radio cell, तो ये आपका एक रेडियो सेल, या आपका दूसरा, या आपका तीसरा। ठीक है, तो एक नोड बी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज इफ द एरिया बिकम्स लार्ज देन दे कैन नॉट हैंडल सच नंबर ऑफ यूजर्स। अब ऑब्वियसली हर सेल के अंदर, हर सेल में कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे सब्सक्राइबर होंगे। So for handling and controlling all those subscriber will be very difficult for the node। okay, so उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, इतना इतना वो कंट्रोल कर सकता है, इतना लोड मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है, and that's all। then this communication network commonly referred to as a 3G can carry many traffic types of real time। चलो ठीक है, तो मतलब थर्ड जनरेशन से आया है। कुछ बोलना चाहता है नहीं? Okay, let me ask one question। Ismail Mullah, Ismail,
Please unmute yourself. ओके अभी बज रहे हैं 3:06। ओके, और मैं डाल रहा हूँ अटेंडेंस लिंक। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन 4 मिनट्स। ओके, 4 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद में मैं लिंक क्लोज कर दूंगा। चलो वापस चलते हैं। सो अटेंडेंस मार्क करने के लिए मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा। अटेंडेंस मार्क करके वापस आ जाएगा। ठीक है, सो द मोबाइल डिवाइस दैट इज यूई। ओके, हम लोग ने इसका एक नाम यहाँ पर एक नाम अलग नाम दिया है, दैट इज यूई। यूई इज नथिंग बट द यूजर इक्विपमेंट। ओके, तो यूजर इक्विपमेंट बोलो, मोबाइल का इक्विपमेंट बोलो, या फिर मोबाइल स्टेशन बोलो, सो ये सारे वर्ड सारे के सारे एक ही। ठीक है, द मोबाइल डिवाइस दैट इज यूई, दैट इज यूजर इक्विपमेंट, can be connected to one or more antennas. Okay, why it can be connected to one or more antennas? You can see your mobile station, your user equipment can be at this location, and initially can be in this location, secondary can be in this location after that. Okay, so it can roam from one location to another location. So अगर यहाँ से move कर रहा है, so it can be connected to many antennas. Okay, multiple antennas at different instant of time. Okay, अभी अभी इसको कनेक्टेड है, यहाँ पर है, ट्रैवलिंग कर रहा है, यहाँ पहुंच गया तो ये वाले एंटीना को कनेक्ट हो गया, फिर ट्रैवलिंग करके यहाँ पहुंच गया, देन नाउ इट इज कनेक्टेड टू दी थर्ड एंटीना, दैट इज थर्ड सेल का एंटीना। ओके, सो each RNC is connected with the core network over the interface IU। अब वही चीज एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, RNC is connected with the core network। RNC is connected to the core network। Just follow my cursor, where RNC is connected to the core network, and again I will say your CN, that is core network, is equivalent to the mobile station। And you know what about the mobile station? Sorry, MSC mobile switching center। your mobile switching center was the very main component in the GSM। okay, तो यहाँ पर आपका core network भी बहुत important component, because which is handling all the RNCs। further those RNCs are controlling the node B, and those node B are controlling the multiple antennas। okay, तो इतना बड़ा लोड एक यानी कि होता है ना, ये आपके सारे समझ लो स्टूडेंट्स है। ओके, स्टूडेंट्स के ऊपर फिर एक एक एंटीना, एक सीआर के ऊपर एक क्लास टीचर के ऊपर एचओडी के ऊपर प्रिंसिपल। so this hierarchy will be maintained for this system also। okay, so over the interface IU similar to the role of A interface। आपको पता है A interface था, पहले तो UM interface था GSM के अंदर, मोबाइल यूजर इंटरफेस, उसके बाद में A interface, फिर ABIS interface, ऐसे ऐसे कुछ था। तो वैसे यहाँ पर भी इंटरफेस है, तो यहाँ पर IU इंटरफेस है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ IU इंटरफेस। ओके, so this RNC is connected to the core network via IU interface। this RNC is connected to the core network via IUR interface। सॉरी, तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको मैं IUR interface is for the interconnectivity between the RNC, between multiple RNCs। okay, यहाँ पर होगा IU का। over this interface IU similar to the role of A interface in the GSM, and with the node B over the interface IUB। a new interface IUR connecting two RNCs with each other। so two RNCs को connect करने के लिए IUR interface use करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, if you remember the diagram then this is done for you people। okay, if you understand this diagram then this is done for all। okay, so एक बार आप खाली बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लो, how they have written, what kind of statement they have used। okay, and what kind of statement, what kind of terms and which term they have used। okay, तो अगर इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो easily you can explain the this topic। okay, that is okay। वापस से जस्ट 10 सेकंड में इसको रिवाइज करते हैं। we have all the mobile station placed at the different cell। okay, so my mobile station can be present in this cell, in this, in this, in this, in this, in this, in this। okay, and each and every cell contain one antenna from which they will broadcast the signal and they will receive the signal। second point, third, the node B which is equivalent to the BTS, node B which is equivalent to the BTS are connected to the multiple antennas in their area। okay, and then node B is connected with the RNC with the help of IUB interface। okay, and उसके बाद में फिर RNC is connected to the core network via IU interface। okay, so your RNS, that is radio networks of system, your radio networks of system comprises of
comprises of RNC and node B. Okay, RNC and node B, and which are connected with the help of the radio links. Okay, जब भी बात आई रेडियो लिंक्स की तो समझ जाना वहाँ पर वायर्ड कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर वायरलेस कनेक्शन. ओके, सो इन दिस वे. और ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बिकॉज के हम लोग एकदम डीप में नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग एनालिस्ट तो जरूर कर सकते हैं. ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस थ्री डिफरेंट मॉड्यूल्स. ओके, and what are those three different modules? One is the RNC, that is radio network controller. Second thing, we talk about the node B, the second component, which is equivalent to the BTS. Okay, the third component is the UE, that is user interface. तो तीनों के हम लोग काम देखने वाले हैं, तीनों के फंक्शन देखने वाले हैं. Okay, so let us start with the first one, that is RNC, radio network controller. Okay, radio network controller in UMTS has a broad spectrum of tasks as listed in the following. So उसके बाद में कुछ टास्क है, तो आप खाली टास्क एक बार देख लो तो आपको कुछ समझ में आ जाएगी. कॉल एडमिशन कंट्रोल. ओके, कॉल एडमिट करना, कॉल अप्रूव करना, कॉल एडमिशन कंट्रोल आरएनसी के पास. कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन आपको पता है क्या होता है, तो कंजेशन को कंट्रोल करना आरएनसी के पास. एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फ्रॉम बोथ द एंड आरएनसी के पास. देन स्विचिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग, सेम मीडियम पर सेम चैनल के ऊपर मल्टीपल लिंक्स को भेजना और उनको अलग करना, मल्टीप्लेक्सिंग, प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ये भी आरएनसी के पास. रेडियो रिसोर्स कंट्रोल, आपकी जो लिंक्स है, ठीक है, जिसके ऊपर, यानी रेडियो लिंक्स मतलब आपका वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, मतलब जहाँ से आपके यहाँ के सिग्नल यहाँ जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके नोड बी से आपके आरएनसी को जो मतलब जो सिग्नल जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, तो जो आपका जो आपकी जो लिंक मेंटेन हो रही है, तो उसका जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिसोर्स है. रिसोर्स मतलब आपकी जो लिंक है. ओके, तो इस रेडियो रिसोर्स को कंट्रोल करना कि अभी कौन सा सिग्नल जाने वाला है, अभी कौन सा जाना चाहिए, तो इसको कंट्रोल करना, इसके एक्सेस को कंट्रोल करना. देन रेडियो बियरर्स सेटअप एंड रिलीज, ठीक है, तो ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है. देन कोड एलोकेशन, पावर कंट्रोल, हैंडओवर कंट्रोल, आरएनएस रिलोकेशन मैनेजमेंट. तो ये इस टाइप के काम हमारे पास हैं जो कि आरएनसी करता है बेसिकली. ठीक है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. तो जितने भी मुझे मिले मैंने कॉपी करके इसमें डाल दिया था. उसमें से अगर आप एक्सप्लेन भी करने जाएंगे, अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको ऑब्वियसली इसमें से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो मुश्किल से आप 4-5 भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो दैट इज इनफ फॉर द रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. देन उसके बाद में हमारे पास में नोड भी है. इफ यू हैव सीन द डायग्राम, देन आरएनसी के बाद में वी हैव द नोड बी. ओके, वो ये. सो नोड बी का क्या बोलता है, तो नोड बी वाज चूजन ड्यूरिंग द नेम नोड बी वाज चूजन ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन अंटिल अ न्यू एंड बेटर नेम वाज फाउंड. ओके, तो ये रखा गया था, लेकिन बाद में क्या नाम दिया बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नेट पे भी नहीं. सो नोड बी नाम है हमारे सेकंड कंपोनेंट का, which connects our multiple antennas and our RNC. Okay, a node B connect to one or more antennas creating one or more cell respectively. So the same जो भी यहाँ सेटअप है, यहाँ का सेटअप, यहाँ का जो सेटअप है, that setup is explained over here. ठीक है, a node B connects to one or more antennas creating one or more cell respectively. Okay, तो जब मोर एक से ज्यादा एंटीना को जब कनेक्ट करेगा तो वो सेल क्या बनाएंगे, अपना एक रेडियस के थ्रू अपना एक सर्कल बनाएंगे, एंड दैट सर्कल विल बी नोन एज द सेल. ओके, तो जितने एंटीना उतने सेल, उनको कंट्रोल करेगा आपका नोड बी. An important task of the node B is power control to mitigate near and far effects. Okay, power control because if the user is far away from the antenna, then it requires more power. If the user is near from the antenna, then it will take less power to broadcast and to receive the signal. So the important task is of node B is the power control. Okay, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब सेशन के हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई देखो आपका सेल होता है, सेल के अंदर एंटीना है. एंटीना अगर हम लोग ज़्यादा दूर है तो वी गेट लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल कनेक्टिंग एनी कॉल. ओके, और अगर हम लोग आसपास कोई अगर नेटवर्क है तो ना यार, हाँ हमारे पास वाली बिल्डिंग में नेटवर्क है या बीटीएस लगा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क बहुत फास्ट आता है, तो थोड़ा नियर एंड फार इफेक्ट्स होता है. His node also measures connection qualities and signal strength. Okay, तो ये ज़्यादातर इसका जो कंसर्न है वो कनेक्शन क्वालिटी, सिग्नल स्ट्रेंथ, पावर कंट्रोल, इसके ऊपर फोकस्ड है. A node B can even support a special case of handover, so called softer handover. अभी सॉफ्टवेयर हैंडओवर का मतलब बेसिकली सिंपल ये है
कि if the mobile user is moving from this location, just mark my cursor and follow it. So if my mobile user is moving from this location to this location, so यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा नोड भी चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज माई नोड भी इज सेम, यानी जो मेरा अपर अथॉरिटी है, so that is not getting changed. ओके, अगर मैं यहाँ के बजाय मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे नोड भी चेंज हो जाता है, यानी मेरी जो हायर अथॉरिटी है वो चेंज हो जाती है। तो समझ लो, आप डिपार्टमेंट है तो समझ लो, करिए आपके एचओडी है तो ये कंप्यूटर के एचओडी हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एचओडी है। अगर आप यहाँ से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रवेश कर लिए, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एचओडी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट तो सेम है, आप SE TB, तो आप SE से बी में आए तो ओनली क्लास कोऑर्डिनेटर आपको पूछेगा, जो भी भाई आप यहाँ की वाई वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये आपका जो अंदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर प्रवेश किया आपने, एंड बोथ द सेल from which you are coming and to the cell you are going. Okay, so both the cell are being controlled by the same node B, then it is called the software handover. Okay, तो सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन खाली बस मतलब शेयर की जाती है, बाकी कोई ऐसा मतलब कि ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। तो दैट इज द सॉफ्टवेयर हैंडओवर, which takes place between different antennas of the same node B. Just mark this word, same node B, यानी कि node B will be same and antennas will be different. Okay, तो यही मैंने बोला, यहाँ पर आपको antennas पहले ये था, अब एंटीना ये है, बट नोड भी दोनों का सेम है। ओके, दैट इज द सॉफ्टवेयर हैंडओवर। आगे बढ़ते हैं यूजर इक्विपमेंट का। यूजर इक्विपमेंट के कुछ टास्क हैं। ओके, क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शनैलिटीज यहाँ पर मेंशन किए हैं। with respect to the node B, with respect to the RNC and with respect to the CN. okay, so यूजर इक्विपमेंट के जो मैंने फिर जो टास्क है, जो उसके फंक्शंस है, यूजर इक्विपमेंट के टास्क, यूजर इक्विपमेंट के फंक्शन इन कंसर्न विद द नोड B, in concern with the RNC, in concern with the CN. Okay, so in concern with all these three different components, what are the different function of the UE that we'll see. Okay, as the counterpart of the node B, the UE perform, अब देखो खाली आपको ये याद रखने वाली चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ नहीं, इसमें कुछ दो राहें कुछ नहीं, ठीक है। द UE परफॉर्म सिग्नल क्वालिटी मेजरमेंट, पावर कंट्रोल ये भी देखता है, बिकॉज यहाँ से भी आपके सिग्नल्स जाना है, तो पावर कंट्रोल यहाँ से भी मेंटेन होना है। स्प्रेडिंग एंड मॉड्यूलेशन एंड रेट मैचिंग, सो दीज आर डिफरेंट फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड with respect to the node B, because आपका जो user equipment है, it is directly connected with the node B. okay, using the antennas it is connected, तो ये सारे काम वो करता है। सेकेंड, अगर बात करें आपके यूजर इक्विपमेंट के टास्क और फंक्शन की, with regards to the RNC, that is रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, जो कि थोड़ा एक स्टेप आगे है। तो the user equipment has to cooperate during handover. okay, देखो अब यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं। During handover and cell selection, perform encryption and decryption and participate in radio resource allocation process. ये इसके कुछ टास्क है जो कि परफॉर्म करता है with respect to the radio network controller. तो यहाँ पर ऑब्वियसली टास्क तो चेंज होने वाले हैं। हम यूजर इक्विपमेंट हमारा यहाँ पर है, और यूजर इक्विपमेंट को RNC से जो टास्क जो मतलब काम रहेगा, वो काम मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपका CN, जो आपका लास्ट, यानी कि देखो आप सोचे ना, यूजर इक्विपमेंट एक स्टूडेंट, उसको अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से क्या क्या काम हो सकते हैं, दैट विल बी डिफरेंट। उसको अपने HOD से क्या क्या काम हो सकते हैं, दैट विल बी डिफरेंट। उसको अपने प्रिंसिपल से क्या क्या काम हो सकते हैं, दैट विल बी डिफरेंट। और उसको अपने डायरेक्टर से क्या क्या काम हो सकते हैं, दैट विल बी डिफरेंट। ओके, सो देखो सबका कंसर्न अलग अलग है, लेकिन है स्टूडेंट चेंज। ओके, मैं एज अ स्टूडेंट इफ आई गो टू द क्लास कोऑर्डिनेटर, मैं खाली क्या पूछ सकता हूँ कि सर मेरी अटेंडेंस कम आई, मेरी अटेंडेंस ज़रा मुझे देखना है, या मेरा रिजल्ट देखना है, मुझे यूटी के मार्क्स देखना है, या मेरे कुछ कंप्लेंट्स थी मुझे ये देखना है। तो ये काम कर सकते हैं। कुछ और हायर इश्यूज़ है तो उसके लिए आप HODs के पास में जाओगे, बिकॉज उसके लिए HODs के पास जाना ही पड़ेगा आपको। तो आप HODs के पास जाके अपना कंसर्न रखोगे। ओके, आपका और बड़ा कंसर्न है, आपको प्रिंसिपल से मिलना है। ओके, तो आप जाके उनसे मिलोगे। आपको अगर कभी अपना बोनाफाइड चाहिए, आपको अपनी LC चाहिए, ओके, या कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्टर तक जाना पड़ेगा। सो द एंटिटी रिमेन सेम। ओके, यूजर इक्विपमेंट विल रिमेन सेम, बट it has to contact with multiple components. Okay, like
with the CN, okay, आपका core network, then you have node B, then you have RNC. So all the three nodes are, these components are different, okay, but सबसे ना अलग अलग काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल से अलग काम, एचओडी से अलग काम, क्लास कोऑर्डिनेटर से अलग काम, डायरेक्टर से अलग काम। तो वैसे ही यूजर इक्विपमेंट को नोड बी से अलग काम है, आरएनसी से अलग काम है और सीएन से अलग काम है, एंड दोज नंबर ऑफ काम, दोज नंबर ऑफ टास्क आर मेंशन्ड ओवर यू, ओके, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, ओके। सो ये आपका रहा इस बारे में, यानी कि UTRAN नेटवर्क। अगेन आई एम टेलिंग यू, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस डायग्राम। इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, देन ऑल द थिंग्स आर सिंपल फॉर यू, ओके। यू नीड टू एक्सप्लेन, 5 मार्क के लिए आता है तो 5 मार्क के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने का। If this question will be asked for 10 marks, then you can write, and you can write down into more explanatory form, okay, so it will become of 10 marks, okay। So ये रहा हमारा UTRAN, that is Uttara Network, UMTS Terrestrial Radio Access Network, okay। एक छोटा सा पार्ट हमारा लास्ट जो बच गया है वो है UMTS, okay। तो UMTS को मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि UMTS इज द सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस which was provided from third generation, okay। अब जस्ट इमेजिन करो, मेरे साथ में इमेजिन करो कि आपका जो थर्ड जनरेशन है वो जनरेशन है जो आपका सेकंड जनरेशन और 2.5 जनरेशन के बाद में आया है, ओके। आफ्टर सेकंड जनरेशन एंड आफ्टर 2.5 जनरेशन, so after these two generation your third generation was came, okay। In second generation your digital communication 1010 was introduced। Second thing, in 2.5 generation you got the GPRS also, okay। तो जस्ट ये दोनों चीजों को आप रिमेंबर करो, अंदर दिमाग में बिठा लो। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस UMTS also, okay। तो UMTS आपका थर्ड जनरेशन से इंट्रोड्यूस किया। इट इज पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट, digitized voice, video and multimedia at data rates up to 2 megabits per second। तो भाई ये जस्ट ये बता रहा है कि ये यहाँ पर, अच्छा पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन क्यों बोला, बिकॉज आपका 2.5G से आपको GPRS मिल चुका था, ओके। जब 2.5G से GPRS आ चुका था तो इसका मतलब आपके पास में पैकेट डेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ओके। सो फ्रॉम थर्ड जनरेशन यू आर हैविंग ऑल दिस सर्विसेज लाइक पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन, ओके। अब उसमें सर्विसेज क्या क्या, मतलब टेक्स्ट है, डिजिटाइज वॉइस है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, ओके। और वो भी आपको डेटा रेट अच्छा खासा मिल रहा है, ओके। 2 मेगाबिट्स प्रपोज्ड आपकी बैंडविड्थ थी थर्ड जनरेशन। UMTS offers a consistent set of services to mobile, computer and phone user, so all can use। बोले ना भाई 2G है तो 3G है, 4G है, तो अभी 4G तो चलो अभी अभी आया साल भर से, उसके पहले तो अक्सर के पास में थर्ड जनरेशन वाला ही था, 3G आता था, ठीक है। सो इट ऑफर्स सेट ऑफ सर्विसेज टू मोबाइल, लोग मोबाइल में भी यूज़ करते थे, कंप्यूटर्स में भी यूज़ करते थे, फ़ोन में भी यूज़ करते थे। नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड, you will be placed anywhere in the world and you can access these services whatever if the GSM and these kind of services like UMTS is present over there, then you can use these services। UMTS is based on the GSM, देखो बिकॉज अगर देखा जाए तो सारों का बेस कहाँ पर है, सारों का बेस आपको GSM में मिलेगा, ठीक है। तो UMTS is based on the global system for mobile communication standard, that is GSM। अगर आपका जो UMTS है तो UMTS भी आपका GSM के ऊपर ही, उसके स्ट्रक्चर पर ही है। UMTS specifies a complete network system which include the radio access network, okay। that is UMTS जो हम लोग ने अभी उतरन देखे हैं वो, तो UMTS specifies a complete network system, again I'm repeating, UMTS specifies the complete network system। नंबर 1 आपका UMTS का, उसके बाद में कोर नेटवर्क और सिम, ओके। तो उतरन, कोर नेटवर्क और सिम सबको मिलाएंगे तो आपका एक कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम बनता है। अभी ऐसे जो है ना, जो स्टैंडर्डाइजेशन आए थे तो काफ़ी लोगों ने इनको यूज़ किया, इसमें चेंजेस किए, और चेंजेस करके जो भी अथॉरिटी है इसकी, पूरी टेलीकम्युनिकेशन वालों की एक अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी वाले अपनी जो कम्युनिटी के सजेशन से, उनके इम्प्लीमेंटेशन से ये सब चलते हैं, ओके। सो जो भी उनका है, उनके चेंजेस आए, चेंजेस करके उन्होंने नया सिस्टम लाए, एंड वट एवर इज दैट,
तो वो करके उन लोगों ने एक नया सिस्टम प्रपोज किया। फिर कोई आया बोले कि इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहिए, ये चीज़ ऐड किए, फिर एक नया सिस्टम प्रपोज की। तो ऐसा इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी चला, बट द बेस वाज GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, व्हिच वाज स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड जनरेशन ओनली। ओके, UMTS core network. Okay, now the important thing is in this particular topic is the UMTS core network. Okay, first let me say you what is core network. So the figure you will see right now over here, the this is the figure of the core network, UMTS का core network. ये डायग्राम देखने में बहुत हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है उतना ही सिंपल। ओके, जस्ट पहले थोड़ा देख लेते हैं। The figure which we are going to see now, it shows a high-level view of the UMTS. It releases the core network architecture together with the UTRN। देखो आपने इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, UTRN पढ़े, ठीक है। UTRN के अंदर क्या क्या था, RNS। RNS क्या था, रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम, रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम था। ओके, यू विल फाइंड दिस रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम वही है, ठीक है। और रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम में क्या था, ये पूरा का पूरा बॉक्स था। रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस कंप्लीट बॉक्स। ओके, तो हाँ, योर यूएमटीएस कोर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ UTRN का RNS मतलब रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम एंड द GSM का BSS। ओके, अब GSM का यहाँ पर, GSM के डायग्राम बहुत पीछे है। तो GSM का जो BSS पार्ट था, दैट इज बेस स्टेशन सब सिस्टम, उसमें उसमें क्या क्या था, उसमें आपका BTS था, आपका मोबाइल स्टेशन था, BTS था, BSC था, वो सब आपका इंक्लूड था। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, UMTS के कोर नेटवर्क में UTRN का RNS सिस्टम, RNS सब सिस्टम और GSM का BSS सिस्टम, वो दोनों सब सिस्टम को लाके इसने मर्ज किया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। The core network shown here is the basically the same as already explained the content of the GSM। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ओके, सबसे पहले ये वाला पार्ट कॉन्सेंट्रेट करो, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन दिस। ओके, डायग्राम इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसीडर दिस पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा कंसीडर करेंगे। तो ये है पार्ट हमारा GSM का। ओके, ये वाला पार्ट कहाँ पे है हमारा, GSM का। तो मैं लिखते जाता हूँ और आप ऑटोमेटिकली समझते जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द GSM पार्ट। ओके, फ्रॉम द GSM वी हैव टेकन दिस BSS पार्ट। ओके, फ्रॉम दिस GSM आर्किटेक्चर we have taken the subsystem, that is base station subsystem वाला पार्ट लिया हम लोगों ने खाली, ठीक है। बेस स्टेशन सबसिस्टम वाला पार्ट लिए, और आपको पता है बेस स्टेशन सबसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल BTS एंड BSC। ओके, and there is a interconnectivity between both these two component via ABIS interface। आपको ये भी याद है, ठीक है। तो GSM के सेक्शन में से आपने उतना पार्ट कैप्चर करके लाए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, फर्स्ट थिंग। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है GPRS, पढ़ा है हम लोगों ने GPRS। तो GPRS के अंदर आपको पता है वी आर हैविंग लाइक MSC। ओके, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ तक, मुझे इसको अच्छे से मार्क करने दो पहले, तो आप अच्छे से समझोगे। ओके, सो ये है मेरा GPRS का पार्ट। ओके, ये मेरा GPRS का पार्ट है। तो ये रहा मेरा GPRS। ओके, अब GPRS का पार्ट यहाँ पर मेरा कैसे आया, यू विल फाइंड फ्यू कंपोनेंट्स ओवर हियर, SGSN एंड GGSN, SGSN and GGSN, these two components are okay, these two components are from the GPRS, if you remember। चलो वापस जाता हूँ मैं GPRS पे, कहाँ है भाई GPRS का डायग्राम, देखो इस GPRS के डायग्राम के अंदर यू विल फाइंड आपका SGSN and GGSN। ओके, एंड अदर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब ये GPRS का सेक्शन हम लोगों ने यहाँ से कैप्चर किए और फिर अपने कोर नेटवर्क में ले जाके पेस्ट कर दिए। ओके, सो थोड़ा सा कुछ मॉड्यूल ऊपर नीचे होंगे एडजस्टमेंट के लिए, बट यू विल फाइंड दीज टू कंपोनेंट ओवर देयर, ठीक है। और इंटरफेस भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर, GN इंटरफेस, GI इंटरफेस। ओके, एंड दिस इज माय कोर नेटवर्क। ओके, इसको मैं पूरे को कोर नेटवर्क बुलाऊंगा। अच्छा, आपके GSM में आपको पता है, आपके GSM में अगर मुझे लैंडलाइन के लिए PSTN के सेक्शन को अगर कवर करना था, तो उसके लिए PSTN वाला भी चाहिए था। तो आई हैव दैट GMSC, that is Gateway Mobile Switching Center, which is connected to the MSC, and then this line will go to the PSTN part। okay, तो यहाँ पर PSTN लिख के हम लोग ने छोड़ दिए। ओके, और ये वाला जो पार्ट हमारा है वो GPRS का है, ठीक है। सो इन कोर नेटवर्क
what we are doing, we are capturing, हमने यहाँ से ये वाला जो part है, that is from the GSM standard, okay, from the GSM standard we have taken this part, from GPRS we have taken this part, okay, again ये वाला जो part है ना आपका, ये वाला थोड़ा सा मैं इसको सही से बता दूँ, ये वाला जो part है, this part is from the again GSM, okay, because आपका PSTN वाला हम लोगों ने आपको GSM भी बताया था, okay, so this upper part and the left part and the right part, upper right and left part is from the GSM standard, okay, then ये वाला जो पार्ट है आपका, देखा जाए तो ये वाला पार्ट है, ये आपका GPRS का है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बताना चाहिए था, तो ये आपका GPRS पार्ट है, तो GPRS में से आपने लेके आ गए ये वाला सेक्शन, और इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा UTRAN, ओके, तो UTRAN के अंदर जो RNS पार्ट था आपका, यानी RNC और नोड बी वाला पार्ट, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको कैप्चर किया, इतना ही। अच्छा, पूरा डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करते बैठेंगे ना तो डायग्राम का बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर है, हाँ, सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोगों ने, RNS, दैट इज रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम, एंड नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल दैट नोड बी के आगे कौन रहेगा, जो एंटीनास हम लोगों ने बताया था वो एंटीनास रहेंगे, ओके, so node B will be connected, node B will be connected to multiple antennas, and those antennas will be covering the specified specific cell, okay, then RNC आपका किससे कनेक्टेड है, आपका ये कनेक्टेड है कोर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये कोर नेटवर्क, ये पूरा का पूरा उसने कोर नेटवर्क में इसको इंक्लूड किया है, ओके, सो ये जो पार्ट आया आपका, ये कहाँ से आया है, ये वाला पार्ट, लेट मी राइट, ये वाला पार्ट इज केम फ्रॉम द UTRAN, ओके, जो हम लोग ने प्रीवियस, जो अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, तो यहाँ से उसने कैप्चर किया, ठीक है, सो फ्रॉम 3 डिफरेंट डायग्राम्स, फ्रॉम GSM स्टैंडर्ड, फ्रॉम GPRS एंड फ्रॉम UTRAN, from these 3 different diagrams we have captured some part and we have formed a core network, इसको हम लोगों ने core network करके बोला, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछा इसका, तो इसको नाम बोलते हैं UMTS core network. As you can see in the description of this diagram, UMTS core network together with a 3G का RNS है, तो ऑब्वियसली ये जो RNS है ये किसका है, UTRAN का है, और UTRAN हमारा जो आया था तो उसके अंदर आपका ये वाला पार्ट है वो 3rd जनरेशन का है, विच प्रोवाइड द 3G एंड द 2G पार्ट वाज प्रोवाइडेड बाय द आपका BSS, ये आपका BSS पार्ट है, ठीक है, सो है कुछ नहीं इसके अंदर, आपके जो 3 टॉपिक है, फर्स्ट इज GSM, सेकंड इज GPRS एंड थर्ड इज UTRAN, तो ये तीनों डायग्राम्स में से एक एक पार्ट कैप्चर किया है और इसके अंदर उसने उसको मर्ज किया है, ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है सबका पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम के बारे में है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑन, ओके, बाद में जो आप लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग रीड करेंगे, क्योंकि मैं अभी इसको रीड करूंगा तो कोई मतलब का नहीं, ओके, बिकॉज जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लेकिन जब आप लोग खुद से जब पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पे या जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये वाला पार्ट किस लिए, ये वाला पार्ट किस लिए, ओके, I'm going to cover the last slide now, and after this slide, I will complete the chapter. Reusing the existing infrastructure. No, मैं इसको एक अलग slide पे लिया हूँ. Everyone focus on this slide because this is the last slide, and I've kept this slide just to understand you that के what was the purposes of all these different networks. Okay, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है last वाली slide. Reusing the existing infrastructure helps you to save a lot of money and may convince many operators to use UMTS if they are already if they were using already the GSM. अब देखो, ऑलरेडी GSM फॉर्म है आपका, ठीक है, ऑलरेडी आपका GPRS भी फॉर्म है, ठीक है, आपके पास में एक UTRAN भी है, UMTS वगैरह है, ठीक है, सो अगर कभी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अगर कोई कभी अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस के पास में अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, we all know that, okay, so they have a capability that they can form a big network, okay, एक GSM से भी अच्छा अगर कोई साइंटिस्ट अच्छे से अगर काम करे तो एक अच्छा बड़ा नेटवर्क, एक अच्छा बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम उन लोग बना सकते हैं, ठीक है, इफ दे वांट, बट वो तो चलो रिलायंस भाई साहब है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन एवरीवन कैन नॉट डू इट बिकॉज इट नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, ओके, व्हिच वी डोंट हैव राइट नाउ, ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, which the component or the infrastructure which are already established like GPRS, like GSM, like UTRAN, okay,
these infrastructures are already invented, already established, already created, already maintained. Okay, so what we can do, we can use the existing system. Okay, we can use the existing infrastructure like GSM, GPRS, ये सब तो हम लोग use कर सकते हैं. Okay, and we can save lot of money. Okay, we can save lot of time, we can save lot of efforts. Okay, ये सारा चीज हम लोग बचा सकते हैं. Okay, या अगर कभी आपका जो ऑपरेटर है, इफ दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द जीएसएम, बिकॉज यू नो द बेस फॉर ऑल द नेटवर्क्स इज द जीएसएम. ओके, तो अगर कभी ऑलरेडी जीएसएम पे काम कर रहे हैं तो जीएसएम से नए नेटवर्क पर आना और एग्जिस्टिंग वाले को मिला के बना के उसके ऊपर काम करना, दैट विल बी वेरी सिंपल. बिकॉज अगर जीएसएम है तो पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज जीएसएम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर भी यूज अगर करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो it was now we are going to end this chapter, okay, with this core network, that is UMTS. Okay, so अगर कभी इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं समझा है तो उसमें ज़्यादा हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट टेंशन खाली इसलिए कि ये डायग्राम समझना है. ठीक है, you need to learn this diagram, you need to understand this diagram, you need to practice this diagram again and again until you get this. Okay, because these are the ये आपके आपके इसके अंदर सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको. कोर नेटवर्क, यूएमटीएस कोर नेटवर्क अलग से नहीं पूछता है, यूएमटीएस कोर नेटवर्क पूछता है. तो यूएमटीएस कोर नेटवर्क आया तो फिर आप ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. यू कैन रीड द बुक्स आल्सो, थोड़ा काम आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा बुक को रीड कर सकते हैं. बिकॉज मैंने यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट मैंने ऐड नहीं किया हूँ. यू विल फाइंड एक स्लाइड ऐड किया हूँ, इन्फॉर्मेटरी स्लाइड है. देन सेकंड के अंदर उसका कंसिस्टिंग है, उसमें क्या क्या है, देन डायग्राम है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन है. तो ये एक्सप्लेनेशन आप लोग बाद में पढ़ना, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है, so with this we complete this chapter and we end this chapter and we end the session over here also. ठीक है, because हम लोग का लेक्चर स्टार्ट हुआ था 50 को, so this is almost the time is done. 40 minutes तो हो ही गए हैं. ठीक है, I hope you have marked your attendance. मुझे याद नहीं दिलाया किसी ने, सो क्लोज करने का ट्राई को. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. यू हैव ऑलरेडी मार्क योर अटेंडेंस. मैं इसको स्टॉप करता हूँ. रहमत सैयद.